चलिए बच्चों, न्यूमेरिकल्स करते हैं हम मोशन इन वन डायमेंशन में। बुकलेट आप लोग के पास होगी, और यदि नहीं है तो इस वीडियो के नीचे टाइटल के साइड में एरो है, उसको क्लिक कीजिए तो डिस्क्रिप्शन ओपन होगा, उसमें लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो बुकलेट मिल जाएगी। उसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, न्यूमेरिकल्स चलाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a car moving along a straight route, it covers the first half length at the rate of 40 km per hour and the second half at the rate of 60 km per hour. Find the average velocity. Average velocity. ये straight route, total distance suppose x, so first half x by 2, next half x by 2. First half with a speed of 40 km per hour. Next half with a speed of 60 km per hour. And we have to find average speed, average velocity. तो सपोज यहाँ पर टाइम लगा t1 और यहाँ पर t2. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डेफिनेटली टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड v1. t2 is equal to x by 2 by v2. We average x by 2 plus x by 2 upon t1 plus t2, x by 2 upon v1 plus x by 2 upon v2. We average x by 2 common, 1 plus 1 divided by x by 2 common, 1 by v1 plus 1 by v2. X by 2 cancel. Finally, V average is equal to 2 upon 1 plus 1 2 upon डिनोमिनेटर में एलसीएम हो जाएगा v1 v2 v2 plus v1 means V average is equal to twice of v1 v2 upon v1 plus v2. इसके वैल्यूज रख दीजिए 2 40 60 40 plus 60. The average is equal to definitely 6 into 4 into 2 48 00 divided by 100 cancel. Average speed is equal to 48 km per hour. Answer question number 1, 48 km per hour. Question number 2. Question number 2. A car moving with a velocity of 10 meter per second accelerates uniformly at 1 meter per second square until it reaches a velocity of 15 meter per second. Calculate first time taken, second distance traveled during acceleration, third velocity reached 100 meter from the place where the acceleration starts. Initial velocity 10 meter per second. Acceleration of car 1 meter per second square. Final velocity 15 meter per second. First time, second,
distance traveled, and third velocity reach 100 meter from the place. 100 meter. ये तीन चीजें अपने को फाइंड करनी है. तो सिंपल. First, v is equal to u plus 80, v 15, u 10, the acceleration 1 and time t. 15 minus 10, 5 is equal to t. 5 seconds. Second, v square is equal to u square plus 2as. क्योंकि u, v और a गिवन है, s निकालना तो इस इक्वेशन से आ जाएगा. वैसे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी आप यूज कर सकते हो, टाइम पता है आपको. तो यहाँ पर v स्क्वायर 15 स्क्वायर 10 स्क्वायर टू एक्सेलरेशन डिस्टेंस. तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा 225 100 प्लस 2s. ये हो जाएगा 125 by 2 is equal to s. s की वैल्यू 62.5 मीटर. ये हो गया सेकंड आंसर. थर्ड आंसर वेलोसिटी बताना है जब बॉडी 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s. इनिशियल वेलोसिटी 10 है, 10 स्क्वायर 2 into acceleration 1 and distance 100 meter. So v is equal to 100 or 200 root over 300. V is equal to 10 root 3. V is equal to 10 root 3 means 1.71. V is equal to 17.1 meter per second. तो इस क्वेश्चन का ये हो गया थर्ड आंसर. फिर क्वेश्चन नंबर 3. Next, question number 3. A car moving along a straight highway with a speed of 126 km per hour is brought to a stop within a distance of 200 meter. What is the retardation of the car and how long does it take for the car to stop? Initial speed given हमको कार की 126 किलोमीटर पर आवर means 126 into 5 by 18 meter per second. 1 kilometer per hour is equal to 5 by 18 meter per second. 1 kilometer means 1000 meter. 1 hour means 3600 second. तो 1000 upon 3600 इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा. ये कन्वर्शन आप याद कर लो. 126 किलोमीटर पर आवर मतलब मीटर पर सेकंड में जाएगा 5 by 18 into 126 into 5 by 18 मीटर पर सेकंड. स्टॉप इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 और कितने डिस्टेंस पर 200 मीटर डिस्टेंस पर. तो हमको एक तो रिटार्डेशन फाइंड करना है और दूसरा टाइम फाइंड करना है. तो देख के समझ में आ रहा है आपको u है, v है, s है. तो इक्वेशन अप्लाई होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s. v0 u 126 into 5 by 18. यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 9
6 3, ठीक है। इससे ये हो जाएगा आपका 7, तो ये हो जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 35 स्क्वायर प्लस 2, ये हमको फाइंड करना है। तो हम साइन नहीं लगेंगे, आंसर खुद साइन बताएगा। और एस 200 ट्रांसफर कर दीजिए, -400 e इज इक्वल टू 35 स्क्वायर, 35 इंटू 35, ए इज इक्वल टू -35 इंटू 35 बाय 400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 3.06 आना चाहिए। और कितने टाइम में ये भी फाइंड करना है। यदि आप इसको 5 से डिवाइड करते हैं 7 हो जाता, 880 हो जाता है, यहाँ भी ये 7 हो जाता, यहाँ कितना हो जाता, 5 से डिवाइड किया तो 116, कुल मिलाकर -49 बाय 16, 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद टाइम भी फाइंड करना है, वो तो इजी हो जाएगा। v इक्वल टू u प्लस 80, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 35, a -3.06 और -3 और t क्लोज टाइम आ जाएगा। इसका मतलब ये रहेगा 3t इज इक्वल टू 35, t इज इक्वल टू 35/3, अप्रोक्सीमेटली 11.4 सेकेंड आना चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, the stone is thrown vertically upward with the velocity of 20 meter per second. What will its velocity be 6 meter per second and what will be its altitude? देखिए हमको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड। हमको फाइंड करना एल्टीट्यूड मतलब s और टाइम, ये दो चीजें निकालनी है। स्वाभाविक आपने अपवर्ड फ्लो किया है, इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, v इक्वल टू u प्लस 80, v की वैल्यू जाएगी 6, u हो जाएगा 20, a की वैल्यू -g -9.81। पर कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हम लोग पहले ले सकते हैं। मोशन अपवर्ड हो रहा है, g डाउनवर्ड लग रहा है, इसलिए नेगेटिव रिटार्डेशन इनटू ऑफ t ट्रांसफर कर दीजिए तो 10t 20 minus 6, so t is equal to 14/10 means t is equal to 1.4 second। एग्जैक्ट आंसर यदि चाहिए आपको तो g की वैल्यू 9.8 रखनी पड़ेगी और यदि 10 रखते हैं तो आंसर क्लोज आएगा। फिर कितना एल्टीट्यूड है मतलब डिस्टेंस निकालना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि v हमको पता है 6 तो 6 स्क्वायर, u पता है तो 20 स्क्वायर, 2 into -10 into s। मोशन अपवर्ड हो रहा है और g डाउनवर्ड लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा डाउनवर्ड रहेगी ना, मोशन अपवर्ड हो रहा है, तो फिर ये रहेगा 20s इज इक्वल टू 20 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो डेफिनेटली
S इज इक्वल टू, या तो 400 माइनस 36 करके सॉल्व कर लीजिए, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उससे कर लीजिए। तो 20 माइनस 6, 20 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 20, S इज इक्वल टू, ये हो गया 14, ये हो गया 26, ये 120। तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 10 आएगा, और डेफिनेटली यहाँ पर 13 हो जाएगा। S इज इक्वल टू 14 इंटू 13 बाय 10 कर लीजिए, जो भी आता है वो आपका आंसर, कितना मीटर्स ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन है, two cars are moving in the same direction with the same speed 30 km per hour. They are separated by distance of 5 km. What is the speed of the car moving in the opposite direction if it meets these two cars at an interval of 4 minutes? मतलब यहाँ पर एक कार ये दोनों सेम डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, इनके बीच का हमको सेपरेशन गिवन है 5 किलोमीटर, और अपोजिट डायरेक्शन में ये कार आ रही है, जो इन कार को 4 मिनट्स में मिलती है। हमको इसकी स्पीड बतानी है। What is the speed of the car moving in the opposite direction if it meets these two cars at an interval of 4 minutes? तो बच्चों ये जो थर्ड कार है, जैसे इस कार को मिली उसके बाद नेक्स्ट कार से मिलने के लिए इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? 5 किलोमीटर। यदि ये स्टॉप होती सेकंड कार, तो इस कार को पूरा 5 किलोमीटर डिस्टेंस अकेले तय करना पड़ता है, लेकिन ये सेकंड कार भी मूव कर रही है और अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है सेकंड कार और इस थर्ड कार के बीच का, ये कौन कवर कर रहा है? दोनों मिलकर। मतलब यदि हम इसको फर्स्ट कार बोले, इसको सेकंड बोले, इसको थर्ड कार, तो इस डिस्टेंस के लिए थर्ड कार की जो रिलेटिव स्पीड है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ थर्ड कार विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। थर्ड कार को सेकंड कार के क्लोज पहुंचना है, तो हमको देखना पड़ेगा थर्ड कार की सेकंड कार के रिस्पेक्ट में क्या स्पीड है, रिलेटिव स्पीड। तो आप क्या बोलेंगे? v3 माइनस v2, x 5 किलोमीटर और टाइम 4 मिनट्स। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। यदि v3 इसकी स्पीड यदि आप पॉजिटिव लोगे तो v2 की स्पीड आपको नेगेटिव रखनी पड़ेगी। तो v3 माइनस v2 की वैल्यू रख दीजिए माइनस 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर जाएगा 5 किलोमीटर और 4 मिनट को कन्वर्ट कर लीजिए आवर्स में। आपको मालूम है 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो 4 मिनट इज इक्वल टू 4/60 आवर। इसका मतलब v3 इज इक्वल टू ये 5 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस, राइट साइड जाएगा तो माइनस 30। यहां से आप देखें तो 15 हो जाएगा।
15 into 5 75, 75 minus 30 45। तो इसका मतलब ये हुआ जो थर्ड कार आ रही है वो किस स्पीड से आ रही है 45 किलोमीटर पर आवर से। यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 था, 6 5th छूट गया है, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th छूट गया था, पहले 5th को कर देते हैं। The body is dropped from rest from a height of 150 meter and simultaneously another body is dropped from rest from a point 100 meter above the ground. What is the difference in height after they have fallen for 2 seconds? Does this difference in height vary with time? तो ये एक बॉडी को यहां से ड्रॉप कर रहे हैं 150 मीटर हाइट से फर्स्ट बॉडी को, और एक बॉडी को 3 सेकंड से ग्राउंड से 100 मीटर हाइट से। इनिशियल डिफरेंस जो है दोनों के बीच का वो है 150 माइनस 100 मतलब 50 मीटर। ये इनिशियल डिफरेंस है, इनिशियल डिफरेंस। फिर जब दोनों बॉडीज को ड्रॉप कर रहे हैं तो दोनों बॉडीज कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, यदि आपको ये फाइंड करना है तो पहले वो निकालिए, क्योंकि हमको बोला है व्हाट इज द डिफरेंस इन हाइट आफ्टर दे हैव फॉलन फॉर इन 2 सेकंड। तो 2 की जगह t ले लीजिए, हमको मालूम है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s u दोनों के लिए 0 है, हाफ दोनों पर एक्सेलरेशन g वर्क कर रहा है, और ये हो गया t स्क्वायर। इसका मतलब s इज इक्वल टू हाफ g इंटू टी स्क्वायर। इसका मतलब है जो दोनों बॉडीज हैं वो 2 सेकंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, और वो डिस्टेंस होगा हाफ 10 इंटू 2 स्क्वायर मतलब s इज इक्वल टू 20 मीटर। इसका मतलब आफ्टर 2 सेकंड जो फर्स्ट बॉडी है उसकी ग्राउंड से जो पोजीशन होगी फर्स्ट की h1 होगी 150 माइनस 20 इज इक्वल टू 130, और सेकंड जो है उसकी ग्राउंड से हाइट तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो अभी भी h1 माइनस h2 130 माइनस 80 अभी भी 50 मीटर ही आएगा। और ये डिफरेंस जो है वो कैसा मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि दोनों बॉडीज का जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, और दोनों पर एक्सेलरेशन जो है वो सेम है, इसलिए दोनों सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और इसलिए दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट मेंटेन रहेगा पूरी जर्नी में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, when two bodies
move uniformly towards each other, the distance between them decreases by 10 meter per second. If both bodies move in the same direction with the same speed, the distance between them decreases by 8 meter per second. What is the speed of each bodies? Let the speed of the bodies are v1 and v2. v1 and v2. According to question, when the bodies move uniformly towards each other, the distance between them decreases by 10 meter per second. तो सपोज ये v1 और ये v2, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जबकि यही बॉडी सेम डायरेक्शन में जब मूव करती हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉडी इज इक्वल टू, ये जाएगा v1 माइनस v2, क्योंकि इसको प्लस बोलोगे तो इसको माइनस बोलना पड़ेगा। रिलेटिव स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी माइनस v2। तो रिलेटिव स्पीड हमको गिवन है 10 v1 प्लस v2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। जब यही बॉडीज मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन में ऐसा, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है 8 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब रिलेटिव स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, v1 माइनस v2। रिलेटिव वेलोसिटी में तो अपन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी माइनस वेलोसिटी ऑफ सेकंड करते ही हैं। ये बात अलग है कि v1 का साइन भी प्लस होगा, v2 का साइन भी प्लस होगा। आप समझे कि नहीं? प्लस v1 माइनस प्लस v2 ऐसा, ये कहने का मतलब। इसके ऊपर ऐसा था, ये प्लस v1 माइनस v2। अब ये हमको क्वेश्चन में गिवन है 8, ये जाएगा v1 माइनस v2। इक्वेशन नंबर 2। टू इक्वेशंस है, अननोन, टू अननोन है, निकल आएंगे। 1 प्लस 2 कर दीजिए, 10 प्लस 8 18, v1 2v1 प्लस v2 माइनस v2 कैंसिल, मतलब v1 इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकंड। जबकि इसी v1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, तो बाय 1 यहाँ 9 रखेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो 10 माइनस 9 1 है, तो v2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी होगी इन बॉडीज की। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, a body travels 200 centimeter in the first 2 seconds and 220 centimeter in the next 4 seconds. What will be the velocity at the end of the 7 seconds from start? Question number 8। कोई बॉडी है, हमको क्वेश्चन में गिवन है बॉडी ट्रेवल्स 200 centimeter in the first 2 seconds, 200 centimeter in the first 2 seconds and 220 centimeter in the next 4 seconds। और हमको फाइंड करना है what will be the velocity at the end of the 7 seconds from start। 7 seconds इसके यहाँ पर वेलोसिटी, तो मान लीजिए ये फर्स्ट AB और ये 4 सेकंड की जो डिस्टेंस है वो BC।
मान लीजिए इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u और इसका एक्सेलरेशन a, ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा। लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज u, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी a। अब बच्चों इनिशियल वेलोसिटी अपने को a पर ही रहेगी, इसलिए पहले a b करने के लिए कैलकुलेशन करो। तो a b करने के लिए जब कैलकुलेशन करोगे तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इसमें s की वैल्यू हो जाएगी 200, u रहेगा, t की वैल्यू 2 हो जाएगी, हाफ एक्सेलरेशन a 2 स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 200 इज इक्वल टू 2 इंटू u प्लस a, 2 कॉमन निकाला मैंने, ये 100 आ जाएगा, तो u प्लस a इज इक्वल टू 100 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट बीसी मोशन क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन आप बीसी छोड़िए, आप तो पूरा एसी लीजिए। पूरा एसी लेने से फायदा ये मिलेगा कि इनिशियल वेलोसिटी आप यू ही ले सकते हो, क्योंकि यदि बीसी लोगे तो फिर बी पर आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं पता है आपको। तो ज्यादा बेटर है कि आप एसी डिस्टेंस लीजिए, इजी हो जाएगा। एसी पूरा एसी बोलोगे और इक्वेशन अप्लाई करोगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 200 प्लस 220, 200 प्लस 220। इनिशियल वेलोसिटी आप u ले सकते हो, क्योंकि आप मोशन पूरा a से ही स्टार्ट कर रहे हो, और टाइम तो a से लेके c तक का जो टोटल टाइम है वो टोटल टाइम होगा 2 प्लस 4 6 प्लस हाफ एक्सेलरेशन a स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ है और टाइम 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 420। यहां से आप 6 को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ बचेगा u प्लस एक 6 निकल गया है, लेकिन एक 6 बचा है, 6/2 मतलब 3a, ये 6 से 70 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आपको u प्लस 3a इज इक्वल टू 70। ये हो जाएगा बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 के लिए आप सॉल्व कर लें, 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन है, इजीली निकल आएंगे, u भी आ जाएगा, a भी आ जाएगा। u और a यदि आ गया तो आप फाइनल वेलोसिटी निकाल लोगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। v की वैल्यू फाइंड करना है, u निकल जाएगा यहाँ से, a की वैल्यू रख दोगे और टाइम की तरफ होगी 7 सेकंड, तो आपका आंसर आ जाएगा। पर फिर भी मेरे पास चूंकि जगह नहीं है तो मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। इक्वेशन 2 माइनस 1 कीजिए, 2 माइनस 1, तो u माइनस u कैंसिल, 3a माइनस a 2a, 70 माइनस 100 माइनस 30, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अब एक्सेलरेशन नहीं बोलना चाहिए हमको, माइनस साइन बता रहा है रिटार्डेशन। अब a की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, -15 और ट्रांसफर कर लीजिए, तो 100 प्लस 15 मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बाय 1 u इज इक्वल टू 115 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आपने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, u 115 आया, रिटार्डेशन -15 आया। अब आपसे पूछा जाए फाइनल वेलोसिटी, तो आप बोलोगे v इज इक्वल टू u प्लस a -15 इंटू t 7, क्योंकि आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है एट द एंड ऑफ 7 सेकंड। तो बच्चों 15 इंटू 7 105, 115 माइनस 105 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपका आंसर होगा 10 मीटर
per second. This is what final velocity at the end of 7 सेकेंड. इस वीडियो में इतने क्वेश्चन इनफ हैं, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में.